السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفانہ شاہین سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ بھارتی فوج نے کنٹرول لائن پر جنگ بندی کی بلا اشتراک خلاف ورزی کی ہے، جس کے نتیجے میں ایک کمسن لڑکی شہید اور 2 افراد زخمی ہو گئے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے 119 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ مزید 4,951 افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ صحت کے بارے میں معاون خصوصی نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ کرونا وائرس وبا کے پیش نظر اپنے بزرگوں کا خصوصی خیال رکھیں۔ بلوچستان کے وزیر خزانہ نے بازت بجٹ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعلیم اور صحت کے شعبوں پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ ترین کارروائی کے دوران سری نگر میں مزید 3 نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ روس نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ دنیا پر حکمرانی کرنے کی کوشش میں اسے تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور اب سے پہر کے 3 بجے کی خبروں کی تفصیل۔ بھارتی فوجیوں نے گزشتہ رات کنٹرول لائن پر حاجی پیر اور بیدوری سیکٹروں میں جنگ بندی کی بلا اشتراک خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فائرنگ سے بیدور سیکٹر کے گاؤں میسور میں ایک 13 سالہ لڑکی شہید ہو گئی، جبکہ اس کی والدہ اور ایک 12 سالہ لڑکا زخمی بھی ہوا۔ پاک فوج کے جوانوں نے بھارتی فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مزید 4,951 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد اس وبا سے متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 1,76,617 ہو گئی ہے۔ سندھ میں 67,353، پنجاب میں 65,739، خیبر پختونخوا میں 21,444، اسلام آباد میں 10,662، بلوچستان میں 9,328، گلگت بلتستان میں 1,278 اور آزاد کشمیر میں 813 مریض ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 119 اموات کے بعد اس وبا سے جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 3,501 ہو گئی ہے۔ اب تک کرونا وائرس سے متاثرہ 67,892 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 89 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ اس وبا سے اب تک 4,66,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ متاثرین اور اموات کی تعداد کے حوالے سے بدستور سر فہرست ہے، جہاں 1,22,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس کے بعد برازیل میں 1 لاکھ سے زائد افراد متاثر اور 50,000 سے زائد اموات ہوئی ہیں۔ دنیا بھر میں اب تک کورونا کے 47 لاکھ سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ صحت کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر ظفر مرزا نے لوگوں پر زور دیا ہے کہ کرونا وائرس وبا کے پیش نظر اپنے بزرگوں کا خصوصی خیال رکھیں۔ آج اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کرونا وائرس سے محفوظ رہنے کے لیے ماسک پہننے، سماجی فاصلہ برقرار رکھنے اور بار بار ہاتھ دھونے کی ضرورت پر زور دیا۔ معاون خصوصی نے کہا کہ کرونا وائرس سے اب تک وفات پانے والوں میں سے 72% افراد کی عمر 50 سال سے زائد تھی۔ وفاقی وزارت صحت نے بزرگ لوگوں کے لیے یا جو معمر لوگ ہیں ان کے لیے، سینئر سٹیزنز کے لیے ایک خاص گائیڈ لائنز ڈیولپ کی ہیں کہ ان کی بچاؤ اور ان کا خیال ہم نے کیسے رکھنا ہے کرونا وائرس کے زمانے میں۔ اگر ہمارے ارد گرد ہمارے گھروں میں کوئی بزرگ ہیں یا یوں کہہ لیں کہ جن کی 50 سال سے زیادہ عمر ہے، اور یہ اس کا امکان چونکہ عمر جیسے جیسے 50 سال کے بعد زیادہ ہوتی ہے تو یہ امکان زیادہ ہے، تو اس لیے 60 سال 70 سال 80 سال اور اس سے ابو کے جو لوگ ہیں ان کا تو خاص طور پہ بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بزرگ شہریوں کو پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے اور پرہجوم مقامات پر جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے کہا کہ وزارت صحت نے ویب سائٹ covid.gov.pk پر بزرگ شہریوں کی کرونا وائرس سے بچاؤ کے حوالے سے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر اطلاعات اجمل زویر نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے کرونا وائرس سے متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن کیا ہے۔ آج پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اس وبا سے بچانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ مشیر اطلاعات نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد کرتے ہوئے حکومت سے تعاون کریں۔ اجمل وزیر نے کہا کہ صوبائی حکومت نے قبائلی اضلاع کے لیے 184 ارب روپے مختص کیے ہیں، جن میں 96 ارب روپے ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے۔
पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने लोगों पर जोर दिया है कि वो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ईद उल अजहा के मौके पर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करें। आज एक पैगाम में उन्होंने कहा कि मवेशी मंडियाँ कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बन सकती हैं और तमाम फरीकों को मुकम्मल ताउन के साथ काम करना चाहिए। गवर्नर ने डॉक्टरों और मुआविन तिब्बी अमले के अरकान के किरदार को सराहा जो लोगों को बचाने के लिए कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार खान ने सूबे में सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। एक बयान में उन्होंने मुतालिका महकमों को मॉनसून के आगाज़ से पहले तमाम ज़रूरी इंतजामात करने की हिदायत की। बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना ज़हूर अहमद वलीदी ने कहा है कि अगले साल माली साल के बजट में तालीम और सेहत के शोबों को तरजीह दी जाएगी। मज़ीद तफसील कोयटा से हमारे नुमाइंदे हुसैन फारूक की इस रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान मीर ज़हूर अहमद वलीदी ने कहा है कि बजट 2020-21 पर अमल दरामद के हवाले से तरीक़ाकार को मजीद बेहतर बनाया गया है। हशक्वेटा में बाद आज बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत तालीम के फ़रोग़ के लिए ख़ुसूसी इक़दाम उठा रही है। इसी तरह अगर आप एजुकेशन को दें, एजुकेशन भी हमारी इस दफ़ा जो है की ग्रोथ कोई 11% है एजुकेशन की टोटल बजट में, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की 17% है। और ये तीनों जो है सेक्टर ऐसे सेक्टर हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त जो है अवाम के साथ है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि डीजल के खात्मे के लिए 500 मिलियन रुपये बजट में मुख्तस किए गए हैं। निजकारी कमीशन लेन देन के इंतजाम में शफाफियत, इकसानियत और तसलसल लाने के लिए इस्लाहात पर काम कर रहा है। वज़ीर निजकारी मियां मोहम्मद सोमरू की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होने वाले एक इजलास को बताया गया कि निजकारी के अमल से हासिल होने वाले 100 अरब रुपये आइंदा माली साल के बजट में शामिल किए गए हैं। इजलास को बताया गया कि फ़ाल निजकारी फहरिस्त में शामिल मुख्तलिफ इदारों के बारे में नुमाया पेशरफ्त जारी है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में आज श्रीनगर शहर में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज फौजियों ने नौजवानों को शहर के इलाके यजदारपुरा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। दरी असना भारतीय फौजियों और पुलिस एहलकारों ने सोपोर और बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर छापों के दौरान मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार भी किया। उधर जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन शब्बीर अहमद डार ने अक़वाम मुत्तहिदा से जम्मू कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम का सिलसिला बंद कराने का मुतालबा किया है। उन्होंने श्रीनगर से जारी किए गए एक बयान में बड़ी ताकतों पर जोर दिया कि वह अपनी आंखें खोलें और मकबूजा इलाके में इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। लद्दाख की वादी गलवान में चीन के साथ हालिया झड़पों के बाद मोदी हुकूमत की फिस्ताई पॉलिसी के बायस भारत के नेपाल के साथ ताल्लुकात भी कशीदा हो गए हैं। भारतीय ज़राए इब्लाग की इत्तलात के मुताबिक नेपाल के रेडियो स्टेशनों से भारत मुखालिफ नग़मे नशर किए जा रहे हैं जो भारतीय सूबे उत्तराखंड में भी सुने जा सकते हैं। नगमों में नेपाल के आवाम को तरगीब दी गई है कि उत्तराखंड के इलाके काला, लेपुलक और लिपाधुरा वापस लेने हैं जिन्हें नेपाल ने अपने नए नक्शे में शामिल कर लिया है। रूस की खारजा इंटेलिजेंस सर्विस के सरबराह सरगेई नेरेसिव ने कहा है कि अमेरिका दुनिया पर हुक्मरानी करने की कोशिश कर रहा है जो तबाही का बायस बन सकता है। बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मगरिब के लोगों ने नाजिज्म को शिकस्त देने पर रूस के किरदार को फरामोश कर दिया है। सोमालिया के मुख्तलिफ इलाकों में आज 2 अलग अलग बम धमाकों में कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए। रेडियो पाकिस्तान आज से पहर 3:30 बजे अपने कौमी प्रोग्राम में वालिद के दिन के हवाले से फीचर प्रोग्राम नशर करेगा। तीसरे पहर 4:05 पर एक और कौमी प्रोग्राम में कोरोना वायरस के हवाले से एक प्रोग्राम नशर किया जाएगा। मौजू है वबाई अमराज से निपटने के लिए मुस्तकबिल का लाया अमल। मौसम की तफसील महकमा मौसमियात के नुमाइंदे से। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहा। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश बालाकोट में 2 मिलीमीटर जबकि कालाम में 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क जबकि सिंध और जनूबी अजला में मौसम शदीद गर्म रहेगा। इसके अलावा आज के दिन में शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में
गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अगर हम मकबूजा कश्मीर की बात करें तो मकबूजा कश्मीर में आज भी बारिश का इम्कान है और मकबूजा कश्मीर के जो शहर हैं श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश का इम्कान रहेगा। इस खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर। भारतीय फौज ने कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की है, जिसके नतीजे में एक कमसन लड़की शहीद और 2 अफराद जख्मी हो गए। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से 119 अफराद जान बहक हुए हैं, जबकि मजीद 4,951 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई है। और बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने बाज़त बजट न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि तालीम और सेहत के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं।